where we talk about no nonsense DIY momentum investing. And today is kind of a special episode because today we'll do the monthly rebalancing for January 15. Well, today is January 16. So we have seen the period of December 16 to January 15, and based on the price of January 15 and how the stocks are ranked after that, based on that I made changes in the portfolio today, and we'll go through them. Uh, and before we start, just another reiteration कि this is not a financial recommendation, and this is just edutainment, education and entertainment, as I always say. और पैसा अपना ही लगाना है, so be careful. This is an experimental strategy, in the sense that like all of us know that momentum works in the long term, but this is just a practical strategy that I'm showcasing, and I'm myself investing my own money exactly as the way I'm showing here. But but again, the caveat is that this is not a financial recommendation, so please research more on momentum investing, view my strategy, and view other strategies also, and take your call. And yeah, let's begin with that. And वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो चाय कॉफ़ी कुछ भी लाना है, सो bring your own drink, whatever you want, and we will start. अब आप बोलोगे कि खाने की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, पकौड़े तो नहीं लाने हैं राइट अभी? तो आई एम एज्यूमिंग कि those of all, like those of us who are like watching this channel, these kind of videos, they are pretty I mean dedicated investors, I would say. So हो सके कि you are already working on some Excel or something of your own where you are tracking all your investments, how they're performing. So तो अभी खाना वाना मत लाओ, डिस्टर्ब भी होगा, रिदम भी टूट जाएगा और फिर कीबोर्ड भी गंदा हो जाएगा, राइट? So let's just start with a some simple drink, and let's begin the rebalancing video. So first of all, we have a summary view of this monthly rebalancing. एक तो like those of you who are watching the videos for the first time, broad introduction मतलब के sense में, and you can check out the portfolio anytime, but broad introduction is that we are playing with a 20 lakh portfolio. Okay, it's simple, easy to remember. 20 stocks हैं, right? 20 stock portfolio of 20 lakhs, 1 lakh in each stock. And we started in November 17, and rebalanced again in December 15, rebalancing again, sorry, December 16, rebalancing again on Jan 16 today. And we do a monthly rebalancing based on the strategy that we have already highlighted. You can watch my previous video as well for this. I can link it in the description below also. So मोटा मोटी अब पिछले एक महीने में, and there have been a lot of things, actually a lot of stocks moved quite randomly, abruptly, not randomly, as we will discuss. And बट स्ट्रैटेजी हमको सेम रखना है, हमको थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाएगा तो वी डू नॉट वांट टू जंप एंड ब्रेक द स्ट्रैटेजी, एंड डिस्क्रिशनरी कॉल्स जितना हो सके मिनिमाइज करना है, राइट? वी नीड टू बी टेकिंग सिस्टमेटिक कॉल्स, सिस्टम बताएगा क्या करना है नहीं करना है. लेट्स नॉट जंप इन टू मिडवे एग्जिट्स एंट्रीज जो भी हैं. We will talk about that. Like I'm also learning new things as we go, and hope all of you are learning things with me as well. So let's start. तो 20 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक निकल गए, राइट? कौन से 4 स्टॉक्स हम देखने वाले हैं. और ज़रूरी नहीं है, ये मैंने पहले ही बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि एवरी स्टॉक दैट इज़ एग्जिटिंग योर मोमेंटम पोर्टफोलियो हैज़ टू बी इन रेड और इट हैज़ टू गिव यू लॉसेस. ओके, सो एग्जिट क्राइटेरियन सबको याद होगा कि हमारा 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का एवरेज शार्प रेशियो जो है, दैट वी टेक एज द मोमेंटम इंडिकेटर बेसिकली टू रैंक द स्टॉक्स, राइट? तो
3 मंथ 6 मंथ्स 12 मंथ्स का जो शार्प रेशो का एवरेज निकल के आता है, उससे हम स्टॉक्स की रैंकिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट टू पॉइंट तो हम परसेंटेज चेंज ऑफ रिटर्न वो भी देख सकते हैं, पर वो हम इस स्ट्रैटेजी में नहीं करते। बट बात ये है कि डायरेक्ट तुम अभी ऐसा कभी बोल नहीं सकते कि 4 स्टॉक जो जा रहे हैं वो डेफिनेटली मतलब रेड में है या वो लॉस दे के जा रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वी विल सी दैट। वो ये है कि एंट्री क्राइटेरियन के बेसिस पे अभी उनका रैंकिंग जो है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, राइट। सो इट्स नॉट दैट दी स्टॉक्स पर से आर वेरी बैड, इट्स जस्ट दैट देर आर अदर अल्टरनेटिव्स। अगर तुमको आज ही और एक बार बनाना होता, राइट, तो तुम ये स्टॉक्स नहीं लोगे, एंड दैट्स वाई दीज स्टॉक्स आर एग्जिटिंग, ओके। एंड अगर 4 जा रहे हैं तो 4 नए भी आएंगे, राइट। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन से 4 नए स्टॉक्स आए। और टेक्निकली ऑल द 4 स्टॉक्स दैट हैव कम आर लार्ज कैप. One thing is that we already had 14 large cap and I think 6 mid cap earlier, right? Let me just okay, we will discuss that later. But यहाँ पे एक बात मेरे को मेंशन करना था कि जो 4 नए कंपनीज आए हैं, राइट, उनमें से 2 हैं, मतलब टेक्निकली सारे लार्ज कैप्स हैं, क्योंकि मैं लार्ज कैप सबको मतलब वी कंसिडर एनीथिंग अबव 20,000 करोड़ मार्केट कैप एज अ लार्ज कैप। अब 20,000 करोड़ मार्केट कैप के ऊपर 25,000 करोड़ मार्केट कैप, 30,000 करोड़ मार्केट कैप के भी शेयर हो सकते हैं, और 2 लाख करोड़ मार्केट कैप के भी शेयर हो सकते हैं, राइट। तो ये जो 4 नए स्टॉक्स हैं टेक्निकली तो चारों लार्ज कैप है, पर इनमें से 2 हैं जो मेगा कैप्स हैं, राइट, पूरे लाख लाख करोड़ के मार्केट कैप वाले, एंड 2 हैं which are technically large cap but they are very close to the mid cap territory. मतलब mid cap जो होता है 5,000 से 20,000 करोड़ का मार्केट कैप जो होता है, they are slightly above that, right? So ये है। दूसरा और एक पॉइंट है कि हमने एग्जिट क्राइटेरियन में कोई चेंज नहीं किया है डिस्पाइट मैसिव स्विंग्स। हमने बीच में एक वीडियो भी बनाया था, सो दोज ऑफ यू हु हैव सीन दैट वुड हैव नोन कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। और फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई जस्ट से पॉलीकैब। सो स्विंग्स मैसिव थे, वी कुड हैव थॉट कि बीच में ही बेच के निकल जाए एंड ऑल, बट दीज काइंड ऑफ कॉल्स आर वेरी डिस्क्रिशनरी एंड वेरी रैंडम टू मेक। मतलब मैं कैसे डिसाइड करूं कि कोई स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा गिर गया है तो कल को वो ऊपर नहीं जाएगा, राइट। आई डोंट नो, मतलब आई डोंट हैव दैट विजन। सो आई जस्ट डिसाइडेड इन दिस केस ऑल्सो टू स्टिक विथ इट कि ठीक है, रिबैलेंसिंग के दिन देखा जाएगा, जो होगा होगा, राइट। या द नेक्स्ट पॉइंट इज नो एग्जिट फ्रॉम प्रीवियस रिबैलेंसिंग। सो जिनको हमारा प्रीवियस रीबैलेंसिंग का वीडियो जिन्होंने देखा है, दे वुड नो कि दिसंबर 15 को भी इसी तरह 5 स्टॉक्स, उससे पहले वाले पोर्टफोलियो के 5 स्टॉक्स निकले थे और 5 नए आए थे। तो ये जो 5 नए आए थे दिसंबर 15 को, उनमें से इस बार कोई एग्जिट नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आके बस 1 महीने में मतलब गिरना स्टार्ट हो गया और निकल गया, ऐसा भी हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। और आइडियली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से, क्योंकि ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में चर्निंग बहुत ज़्यादा होती है मोमेंटम पोर्टफोलियोज में, सो ऐसा भी हो सकता है कि 20 से 10 स्टॉक्स निकल जाएं और 10 नए आ जाएं, राइट। फॉर्चुनेटली वो नंबर फॉर द फर्स्ट रीबैलेंसिंग इट वाज 5, फॉर नाउ इट इज़ 4, but still, like if you consider it, it's almost like 20-25% of your stock is getting churned every month, right? तो उसके खर्चे आते हैं, तो आइडियली हमको भी जितना कम खर्चे में हम निकल सकें उतना ही अच्छा है। मतलब जितना कम चर्न हो, वी वोंट डू एनीथिंग टू प्रिवेंट चर्न इफ इट हैपन्स, बट द लेसर द चर्न द बेटर इट इज फ्रॉम एन ओवरऑल रिटर्न CAGR परस्पेक्टिव, ओके। सो थैंकफुली पिछले जो दिसंबर 15 में जो 5 स्टॉक्स आए थे उसमें से कोई नहीं निकला है। ये 4 जो निकले हैं वो पहले से ही थे हमारे पास फ्रॉम द बिगिनिंग ऑलमोस्ट। सो ओके, इसके बाद पोर्टफोलियो का जो ऑल टाइम, एंड दिस आई एम सेइंग ऑन जनवरी 16, आज के हिसाब से पोर्टफोलियो का जो ऑल टाइम रिटर्न है दैट इज स्टिल ट्रेलिंग द NSE 500 रिटर्न बाय 1%। तो 11.61% हमारा रिटर्न है और 12.65 NSE 500 का है, बट ये पॉइंट टू पॉइंट है, इट्स नॉट एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। और एक चीज़ है कि ये गैप पहले ज़्यादा थी,
मतलब बीच में इट वाज होवरिंग क्लोज टू 2.75 to 3% का डिफरेंशियल था, मतलब we were below the NSE 500 by 2.5%, but now we have closed the gap pretty closely. Actually midday पे आज it was much less than 1% also, but that is something you have to understand. ऐसे मतलब NSE 500 में 500 स्टॉक्स हैं, राइट? हमारी स्ट्रेटेजी में सिर्फ 20 स्टॉक्स हैं. सो 20 स्टॉक्स के साथ इट्स अ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, राइट? इट्स नॉट वेरी कंसंट्रेटेड बट इट्स स्टिल कंसंट्रेटेड. एंड विद दीज थिंग्स लाइक द ट्रेंड कैन गो ईदर वे. अगर कोई स्टॉक बहुत खराब परफॉर्म किया तो योर लाइक पोर्टफोलियो विल गेट मोर इम्पैक्टेड फ्रॉम दैट वन स्टॉक, बिकॉज वो 20 हिस्सों का एक हिस्सा है, राइट? इट्स लिटरली 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो. बट अब NSE 500 में कोई एक स्टॉक नीचे भी चला जाता है, हु केयर्स, राइट? कितना ही फर्क पड़ेगा इंडेक्स को, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली इट टर्न्स दी अदर वे ऑल्सो. अगर कोई स्टॉक तुम्हारे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो दैट विल हैव अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो. तुम्हारे पोर्टफोलियो का रिटर्न जल्दी से बढ़ जाएगा. और इसका क्लासिक केस है IRFC. Any of you who have been following the IRFC stock would have seen this massive jump in the last, I think, 3 or 4 sessions, right? पागलों की तरह भाग रहा है स्टॉक, और पागलों की तरह ऐसा भाग रहा है कि it actually came in the portfolio in December 15, I remember, like previous rebalancing में ही आया है वो. और वो ऑलमोस्ट सारे जो स्टार्टिंग से जो स्टॉक्स थे उन सारों के रिटर्न्स को क्रॉस करके वो ऊपर चला गया है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन. अगर IRFC अब NSE 500 में होता, NSE 500 का मतलब NSE 500 पे उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? बहुत कम, बिकॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन, द शेयर, द वेट इज लेस. हियर द वेट इज 5%. तो अगर भागेगा या डूबेगा, जैसा भी हो, इम्पैक्ट तो काफ़ी होगा, राइट? सो दैट इज वन थिंग आई wanted to mention. बट ओवरऑल ये जो हमारा 3% का डिफरेंशियल था, हम नीचे चल रहे थे, वो ऑलमोस्ट अब हम 1% नीचे हैं. ओके, एंड या दीज 4 स्टॉक्स दैट आर एग्जिटिंग, उनका जो नेट लॉस है, एंड दैट आई विल शो यू, दैट इज अराउंड 20.7 के. ये रियलाइज्ड लॉस है, मतलब हमने आज बेच ही दिया है. ऐसा नहीं कि हम पोजीशन अभी खुला करके रखे हैं या हम एवरेज डाउन करेंगे, राइट? हम मोमेंटम में यूजुअली एवरेज डाउन नहीं करते. पर so 20.7k is the INR loss in these 4 stocks that have exited. So bye bye to these stocks. And जो unrealized profit है इस महीने का, मतलब प्रीवियस मंथ के, प्रीवियस रीबैलेंसिंग पीरियड के एंड में पोर्टफोलियो का वैल्यू जितना था माइनस कंपेयर टू दिस मंथ अभी जितना है, सो वी हैव अ नेट गेन ऑफ, एंड दिस इज अनरियलाइज्ड बिकॉज वी हैव नॉट सोल्ड दो स्टॉक्स, राइट? हम अभी भी लेके उनको डीमैट पे बैठे हुए हैं. So the unrealized profit is 1,38,000. Okay, and the last point finally is there is an exception that I'll be doing in this times rebalancing, and I will tell you the reason for the exception. It's a very contextual exception actually. आज ही कुछ हुआ है because of which I'm giving an exception for this stock. बहुत volatile है, and this is about one of the 4 new stocks जो आने वाला था. So we have not bought them in totality, मतलब जितने खरीदने थे उतने टोटल हमने खरीदे नहीं है, क्योंकि the stock currently looks pretty volatile in the very very short term. Okay, so I will discuss more on that. Let's move on. Okay, so this is the complete detail of the portfolio. चाय कॉफ़ी जिसको लाना था, आई होप यू हैव बॉट, एंड विल स्टार्ट एनालाइजिंग वन बाय वन. ओके, इफ़ यू सी, सो ये 20 स्टॉक्स हमारे पास थे फ्रॉम December 16 to January 15, एंड आउट ऑफ दीज जो रो रेड में मार्क हुए हैं, दोज आर द 4 स्टॉक्स दैट वी आर एग्जिटिंग. यहाँ पे if you see, look at the rightmost column also, you will see the status as continue or exit. So exit criterion जैसे strategy में भी मैंने पहले बताया था, it's very simple, right? If the stock if the stock's rank in the momentum ranking falls to beyond 50, then we will exit it, no questions asked. And if the stock, if it's an existing stock and it continues to be within rank 50,
देन वी जस्ट कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, क्योंकि इसके अंदर बहुत हेर फेर भी होता रहता है. मतलब आई हैव सीन स्टॉक्स गोइंग फ्रॉम लाइक रैंक 20, फिर कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, वो चले गए रैंक 47 तक, और मैं बस सोच ही रहा था कि इस रीबैलेंसिंग में शायद निकल जाएगा ये स्टॉक. पर फिर समथिंग हैपन्स, फिर किसी दिन 8% चढ़ गया एंड देन इट्स बैक टू रैंक 31 एंड 23 और समथिंग लाइक दैट. एंड इफ इट इज़ बिलो 50 सो आई विल जस्ट कंटिन्यू कि ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ बने रहते हैं, अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा. And anything that drops below 50 we will exit. So all these 4 stocks have met that criterion, and I will show you the graph also. But if you see at the returns, this is the first point that I was making. If you look at Godavari Power, right, Godavari Power has given a net profit of 12.1%, और 12.1% कोई मजाक नहीं है, 1.5 महीने में दे के कोई जा रहा है तो, राइट. 12.1% तो यार इंडेक्स में हम मान लेते हैं कि साल में दे दिया तो अच्छी बात है, राइट. सो इफ यू लुक एट द करंट वैल्यू, एंड दिस इज द करंट वैल्यू एज इट एग्जिस्टेड बिफोर आई सोल्ड ऑल 4 of these, इज सफारी. वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस प्रीवियसली ऑल्सो. 16% का लॉस देके गया ये स्टॉक, सो इट काइंड ऑफ ruined that 1 lakh of capital it brought it down to almost 84,000. And Godavari Power, if you see, इसने 12,000 का प्रॉफिट दिया. Similarly, KPIT if you see 0.87% ऊपर, right, फर्क भी नहीं पड़ता मतलब it's literally 750 rupees of gain, which I'm sure would be covered by the charges and all also. So no material change in KPIT. So that is there. And then the third stock जिसकी हम बात कर रहे थे, which was Polycab. Polycab is an interesting story. जिस दिन 9% गया था उस दिन मैंने एक शॉर्ट्स भी रिलीज़ किया था इस पे, and the next day it kind of increased a bit. It was probably giving a breather कि जिसको बेचना है बेच के निकल जाओ. And but I didn't know what to make of it, right. And these kind of calls, I'm not a trader. I don't know कि कल क्या होने वाला है. फॉरवर्ड लुकिंग कुछ भी नहीं दे सकते, या मतलब मेरे को खुद पता नहीं है. सो आई कंटिन्यू टू होल्ड एट द डेज क्लोज ऑन द सेकेंड डे. सो फर्स्ट डे वो IT डिपार्टमेंट वाली खबर आई, 9% गिरा स्टॉक. देन सेकेंड डे इट क्लोज आई थिंक 0.9% अप, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. और फिर थर्ड डे जब हुआ, सीधा 22% से नीचे गया स्टॉक. अब जब 22% से नीचे जाता है स्टॉक, तो आई मीन लाइक समवन हु इज hastily looking at their portfolio, they can also see कि मतलब स्टॉक बहुत नीचे जा चुका है and we'll have to like sell it, exit, whatever, and get out of it immediately, right. So in the heat of the moment you can always immediately you can get out of it, but I decided to wait on, because I don't know, like the tax evasion claim was around 200 crore first, then something came out कि 1000 crore का कुछ मिला है, whatever, but the market cap that was eroded was like upwards of 10,000 crores, right. So तुम 1000 करोड़ के लिए, एंड माना कि कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा था, बट मतलब 1000 करोड़ का भी मान लेते तो 1000 करोड़ के लिए तुम 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कैसे मतलब इरोड कर सकते हो, राइट. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन मार्केट. इट्स एवरीथिंग इज, जैसे बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर. सो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वॉर एंड मार्केट. सो बट उसके बाद इफ़ यू सी बट समवेयर यू फील कि भाई 22% तो शायद बहुत ज़्यादा बेच दिया है लोगों ने, ओवरसोल्ड भी हो गया होगा, और स्टॉक्स अच्छा चल भी रहा था, तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी. मतलब ठीक है 17% गिर गया, बट 100% हमने कमाया भी है तो निकल जाते हैं, राइट. ऑल दोज थिंग्स हैपन. सो वंस बट आफ्टर दैट इट स्टेबिलाइज्ड अ बिट, ठीक है, और उसके बाद वो ऊपर जाने लगा. तो नेट परसेंट जब आया घूम फिर के, हमारे पोर्टफोलियो में लॉस उसका आ रहा है ऑलमोस्ट 18% का, विच इज स्टिल ग्रेटर देन सफारी, जो कि धीरे धीरे नीचे जा रहा था, और पॉलीकैब फटाक से नीचे गिरा, राइट. बट नीचे गिर के भी अगर हम मिड वीक में ही टेंशन में आके बेच देते कि भाई इतना गिर गया, 22% गिर गया, कल को और 15% गिर जाएगा, बेच दो, वी कैन डू दैट. बट वो भी वीकली रीबैलेंसिंग के टाइम में ही करना चाहिए. सो एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज. मतलब ऐसे दिन मतलब वी आर नॉट ट्रेडर्स, राइट. ऐसे देख के फटाक से बेचना, मतलब आई डोंट थिंक दैट्स अ स्केलेबल स्ट्रैटेजी. अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो मे बी आई एम ऑन अ हॉलीडे ऑन दैट डे. मोमेंटम इन्वेस्टिंग का काम ही है कि हर दिन चार्ट के सामने बैठ के नहीं रहना है तुमको, राइट. तो
बट या सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट सेल इट, और फिर वो ऊपर जाने लगा वापस, और नेट लॉस जो था हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता था, वो नहीं हुआ. एंड इफ़ यू सी, वो ऑलमोस्ट मतलब सफारी और ये दोनों सेम ही लेवल का मतलब लॉस दे के गए हैं हमको. तो ओवरऑल अगर हम ये चारों स्टॉक को मिला दें तो 20,000 का रियलाइज्ड लॉस हुआ है. और अब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये चारों तो एग्जिट कर रहे हैं. अब इनका जो बेच के जो पैसा आया, ये 83,790, 112,000, ऑल दिस वी एड अप. ऑब्वियसली ये 4 लाख नहीं है अभी. इट केम, आई थिंक इट वाज क्लोज टू, okay, it was shorter than 4 lakh. Okay, I'll show you the exact amounts also in the next table. But वही है कि जो बेचे हुए स्टॉक्स को बेच के जितना पैसा मिला, राइट, 4 स्टॉक, और तुमको 4 अभी नए खरीदने हैं, तो वही कैपिटल जो है उसको बाय 4 हम डिवाइड करेंगे, उसको हम नए 4 स्टॉक्स में लगाएंगे, which we will see. And before this I also want to show you the momentum screener. अब if you have been following this screener, you would see कि there are two new this thing added, two new filters, right? two new filters में मतलब ऐसा है कि एक एक पैरामीटर से, एक इंडिकेटर से तुम रैंकिंग कर सकते हो, कोई दूसरे फैक्टर से भी कर सकते हो. जैसे रेट ऑफ चेंज हो गया, राइट? तुमको शार्प भी देखना है, तुमको रेट ऑफ चेंज भी देखना है, तुमको वोलेटिलिटी भी देखना है. तो अभी इस प्लेटफॉर्म में दिस वाज नॉट अर्लियर देयर. सो ये यू कैन प्लेस लाइक three filters here, right? And you can sort them, you can have a combined ranking. मतलब एक फैक्टर से एक रैंकिंग आया, दूसरे फैक्टर से another set of rankings, तीसरे फैक्टर से another set of rankings. You combine all these three and you get a consolidated rank, और उस बेसिस पे तुम्हारा लिस्ट बनेगा. For now I haven't tried this and I don't plan to try this also. I have talked to Viraj also regarding this, who owns this platform, and he has also said that the plain old sharp momentum works the best. Or I think I've heard some other marquee momentum investors also saying the same thing, that the more जितना तुम चीज़ें उसके अंदर घुसाते जाओगे ना, मतलब कि हम मार्केट कैप से ऐसा कर देते हैं कि मार्केट कैप से फिल्टर लगा देते हैं, फंडामेंटल वैल्यू से फिल्टर लगा देते हैं, मोमेंटम का कोई और इंडिकेटर ले आए उसका वैल्यू लगा देते हैं, पेट्रोस की स्कोर, ये स्कोर, वो स्कोर, जो फलाना ढिमकाना सारे स्कोर लगा दो. जितना होता है उससे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा यूजेबल इन्फॉर्मेशन निकलती नहीं है. एंड उससे परफॉर्मेंस में ज़्यादा कोई बूस्ट भी नहीं आता है. सो दिस हैज़ बिन डन फॉर डेकेड्स नाउ एक्चुअली, एंड मैनी पीपल हैव कन्फर्म द सेम थिंग कि बहुत ज़्यादा चीज़ में मत घुसाओ एंड कीप इट सिंपल. सो आई एम कंटिन्यूइंग विद वन फैक्टर एज ऑफ नाउ. इफ इट चेंजेस इन द फ्यूचर आई विल डेफिनेटली लेट ऑल ऑफ यू नो and we can proceed accordingly. So okay, now coming to the list. If you can see, most of these stocks you would already find in our portfolio. पर इसमें से जब हम रैंकिंग करके निकालते हैं, रीबैलेंसिंग के दिन बेसिकली क्या करना होता है, वही चीज़ जो हम वीकली रिव्यू पे भी करते रहते हैं, बट हम उस टाइम बाय नहीं करते, हम बस देख रहे थे कि कौन नया आ सकता है, राइट? इस बार हम ये करते हैं कि मतलब 20 स्टॉक्स हमने फाइनल रैंकिंग निकाल दी, 15 तारीख को मार्केट बंद हो गया, 15 तारीख का अपडेट हो गया यहाँ पे प्राइस. इफ़ यू सी हियर इट्स अपडेटेड विद 15 जन. आज शाम को ये फिर से अपडेट होगा, पर इट्स अपडेटेड विद 15 जन. तो मैंने सीधा निकाला ये लिस्ट, और 20 में से मेरे को अब 4 जो निकलने हैं, राइट, दोज आर डेफिनेटली नॉट देयर. लाइक इफ आई सर्च हियर फॉर पॉलीकैप, लेट मी सर्च हियर फॉर पॉलीकैप. So Polycab, you can see there is zero results, right? Zero search results. So है ही नहीं यहाँ पे. तो वो सारे तो निकल ही गए. We would confirm, we confirm that all those 4 stocks are beyond 50 ranking. Okay. बट अब क्वेश्चन आता है कि अब 4 जा रहे हैं, 4 नए आ रहे हैं, तो वो कौन से होंगे? तो 4 वही होंगे जो मतलब टॉप 20 रैंकिंग्स में आ रहे हैं और तुम्हारे पोर्टफोलियो में अभी तक है नहीं. तो फर्स्ट BSE, दिस केम अप इन मल्टीपल वीकली रिव्यूज ऑल्सो, पहले भी आई हैव शोन यू. देन द सेकंड स्टॉक वाज एंजल वन. वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट मोर ऑन दिस, क्योंकि इसी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है अभी अर्निंग्स रिलीज के बाद. थर्ड वाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एंड फोर्थ इज बजाज ऑटो. तो यहीं से पता चल जाता है कि ये 4 जो नए प्लेयर्स हैं वो घुसने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो में इस महीने. एंड ऐसा नहीं है कि कल को तुम निकालोगे यही लिस्ट या परसों को निकालोगे तो मतलब चेंज नहीं हुआ होगा. हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, हो सकता है ये एंजल वन यहाँ से खिसक के 18 पे आ जाए, राइट? एट दैट पॉइंट
और मतलब some other stock can also go, but I'll tell you the reason why I'm mentioning Angel One. पर अगर वैसा होता है, right, it's not that something is correct or amiss. You have given, like you have selected one date, तुम आके फिर 16 को आके 15 के हिसाब से, अगर तुम्हारा 15 के बाद रिबैलेंसिंग करना है 15 के प्राइस के हिसाब से, you cannot come back on 17th and say कि okay my price is now moved so I will change these few stocks. ठीक है, बीच में चेंज नहीं करना है, मंथ टू मंथ जो डेट हमने फिक्स किया है, इफ इट्स फर्स्ट फॉर यू, इफ इट्स 7th फॉर यू, इफ इट्स 28th फॉर यू, whatever it is for you, you rebalance on that day whatever has come as per the screener. एंड लॉन्ग टर्म में वो चलेगा नहीं चलेगा उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी उसको खुद निकाल देगी, राइट, या खुद लाइक नए स्टॉक्स ले आएगी. So we go back to our portfolio, and yeah, these 4 stocks have left, and I showed you just these 4 stocks which are highlighted in gray at the bottom. ये 4 नए आए हैं, and if you see the capital invested in them is not 1 lakh. It is the total capital that was obtained by selling those 4 stocks जिसने exit किया, और उसको by 4 कम करके हमने इसमें डाला है इन shares में. Okay. And so if you see like the column looks much less red now, क्योंकि red वाले जो 2-3 थे वो निकल गए हैं. And so this is how momentum works, right? It keeps churning, मतलब selection of the survival of the fittest type का, कि मतलब कुछ जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो निकलते जाएंगे. तो रेडिश या जो मतलब कम ग्रीन है, if I can use that term, they will keep getting kicked out. And जो नए हैं, नए तो चलो अभी 0% पे हैं क्योंकि आज ही ऐड हुए हैं ये, पर वी विल सी हाउ दे परफॉर्म. बट पिछले जो 5 आए थे पिछले रीबैलेंसिंग में, these 5 stocks if you see, they've given pretty good returns. Good mention is 50.26% IRFC, 50.26% in a month. So that is I mean really crazy. It has actually topped, पहले के सारे शेयर्स को इसने टॉप कर दिया है, right? So yeah, these things can happen. It can also go 50% down, but what I'm saying is कि now the portfolio looks a little more greener, and these are the 4 new stocks. इनमें से Angel One के बारे में एक special mention. We will look at the charts. Let's look at the charts of those 4 exits जो निकले हैं और 4 जो नए आए हैं, and we'll see. Since it's not a point to point return, हम direct इससे deduction नहीं कर सकते कि इसका चार्ट अच्छा दिख रहा है तो ले लो वो सब, क्योंकि लिस्ट तो हमारी बन के आ जाती है. बट इट्स फन टू लुक एट चार्ट्स. सो विल सी हाउ द प्राइस, like what is the price trajectory, how has it performed in recent times. So if you see ये जो सारे एग्जिट करने वाले हैं, सफारी का तो देखो, मतलब यहाँ पे उसका हो गया अक्टूबर के मिड में, अक्टूबर, नॉट इवन अक्टूबर मिड, द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आई थिंक. फ्रॉम देयर द स्टॉक हैज लिटरली लाइक लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स मोमेंटम, मतलब पावर ही खत्म हो गई है, मतलब पूरा थक गया है, चलना ही नहीं है, राइट. There were multiple like resistance it hit, if I have to use the technical term, and but it kept going down. It still keeps going down. There is no, it's a consumer stock. Consumer में वैसे ही बोल रहे हैं कि मतलब current sentiment भी उतना कुछ bullish नहीं है कि consumer buying बहुत ज़्यादा आएगी and all that. So the stock has continued to go down. It's not a very pretty graph. If you look at Polycab I just mentioned a while ago. ये सीधा यहाँ से गिरा 9%, and this is what I was saying. The second candle here, I'm not sure if it's visible to you, but the second candle was very minor. और third day जो था वो सीधा gap down में खुला 22% नीचे. But after that, if you see, there are 4 consecutive green candles, right? Or I think 3 green candles, जिसके वजह से ये जो फॉल था इसमें से इसने आधा ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया. तो मैंने अगर इस दिन इसको बेच दिया होता ना पैनिक में आके कि 22% चला गया है ले लो, मतलब सॉरी बेच दो, देन आई वुड हैव लॉस्ट ऑन दिस रिटर्न दैट द स्टॉक हैज मेड. सिमिलरली कोई ये भी बोल सकता है कि तूने इस दिन क्यों नहीं बेचा, राइट, बट दैट आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड कि मैं बीच में नहीं बेचूंगा, मैं रीबैलेंसिंग के दिन ही बेचूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है प्राइस में. सो देयर इज दैट. सो दीज टू वी कैन डेफिनेटली सी कि ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा तो डगमगा गया है या स्लो हो रहा है. फॉर पॉलीकैब इट वाज वेरी सडन, फॉर सफारी इट हैज बीन ग्रेजुअल. बाकी दो स्टॉक्स जो निकले हैं, जीपीआईएल एज आई शोड यू प्रॉफिट दे रहा है, वो अभी भी दे रहा है, इट हैज गिवन अस प्रॉफिट व्हाइल एग्जिटिंग द पोर्टफोलियो, बट उसका रैंकिंग रिलेटिव टू अदर स्टॉक्स हैज बीन लेस, मतलब इट इज जस्ट डूइंग ओके बट नॉट डूइंग टू गुड. सो
ये चला गया फिर सिमिलरली केपीआईटी टेक इफ़ यू सी ये नवंबर somewhere around in the second half of November it hit a very good high and then it kind of like keeps going up and down a little bit sideways ही जाता रहता है. The general trajectory is not bad if you see the long term trajectory is still pretty good. But अभी जो ऐसे IT में like a few days back some IT stocks went up by quite a bit, right? I guess Sonata Software जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो काफ़ी भागा था and there was Birla Software which gained quite a bit. KPIT in those days it didn't do much, right? तो अगर if it would have performed to that magnitude in that in that period तो हो सकता था कि KPIT का रैंक would not be outside 50 even in this month's rebalancing. बट इट डेंट डू आई मीन प्राइस में हुआ नहीं और हम तो बोलते हैं भाव भगवान छे. तो अगर प्राइस ऊपर नहीं गया तो भाई फिर स्टॉक जितना भी अच्छा हो निकलना तो पड़ेगा ही, राइट? जब प्राइस अच्छा करेगा फिर वापस घुस जाएगा वो. सो दीज आर द ट्रेजेक्टरी ऑफ एग्जिट्स. ये 4 जो हमारे दोस्त थे इनको बाय बाय कह दीजिए, ये निकलने वाले हैं. एंड वेलकम दीज 4 न्यू एंट्रेंट्स. अब these new 4 entrants में भी कहानी है. If you look at the highlighted terms, highlighted charts at the top 2, so first one is Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange again momentum इसमें ठंडा हो रहा है but बीच बीच में green candles आते रहते हैं. But overall it's a sideways move. मतलब जैसे ये भाग रहा था वैसे तो नहीं भाग रहा है. Whether it can go up or not that I do not know. हम तो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देख के चल रहे हैं. पर if it continues to go down a lot or corrects then we'll have to exit. But at this point I'm not feeling very hopeful about Bombay Stock Exchange. Maybe it's taking a little bit of breather. अगर इसके बाद वो चला तो good enough for us. But अगर नहीं then we'll have to like rethink, right? But अभी भी रैंकिंग में टॉप स्पॉट पे है BSE का स्टॉक. The second one is Angel One. Angel One the ranking में अभी भी it was I think at 7th or something, so pretty high. But it was based on yesterday's price. अब yesterday क्या हुआ, Angel One की हो गई अर्निंग्स रिलीज और स्टॉक पागलों की तरह भाग रहा था. उससे पहले आई हैड ऑल्सो मेंशन कि इन माय अदर पोर्टफोलियो ऑल्सो आई हैड Angel One, राइट? और आज सुबह इट started with a fall of I think around 13%. And of course the earnings release was below expectations. तो करेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया. 15% एक स्टॉक अगर एक दिन में आ जाता है देन बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शनल, बिकॉज रीबैलेंसिंग मेरे को आज ही करना है कल के प्राइस पे और कल शाम को अर्निंग्स रिलीज हुई है और आज सुबह जब मेरे को रीबैलेंसिंग करके मतलब खरीदना है उस स्टॉक को तभी स्टॉक हैज़ फॉलन क्रैक्ड बाय लाइक 15%, 13 to 15%. Then that's why I'm taking an exception call for this one कि I would not buy the whole lot as of now. So I think I have to buy how much? 28 stocks of Angel One. So I will buy just 5 stocks. Okay, so 5 stocks I will just take and keep, and I will study this over the next couple of days. I don't want to be in another polycap type situation, right? कि you waited for one day, you like bought everything and the stock tanked by 30%. So because it's a very fresh news, कल ही शाम को आई है और आज सुबह ही प्राइस गिरा है. So I'll waiting for 1-2 more days और बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, पर I'll do a staggered entry in this sense. और हो सकता है कि बट दिस ऑल्सो कट्स बोथ वेज. हो सकता है कि कल सुबह ये फिर से बढ़ जाए 7% तो मेरे को ज़्यादा प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो ट्रू. ऑल दैट इज़ फाइन, बट इट्स आई फील लाइक इट सूट्स माई पर्सनल स्टाइल टू वेट अ लिटिल बिट फॉर दीज काइंड ऑफ रेयर ऑकरेंसेस. ऐसा बहुत बहुत रेयरली होता है कि कल ही बिल्कुल है, मतलब कल ही शाम को न्यूज़ आई है, आज ही स्टॉक गिरा है और आज ही मेरे को रीबैलेंसिंग करना है, राइट? सो दैट इज़ देयर. द अदर स्टॉक्स आर बजाज ऑटो. एज यू कैन सी ट्रिमेंडस ग्राफ. इतनी बड़ी कंपनी होके ये भाग रही है, 45 डिग्री एंगल से भी ऊपर का स्लोप लग रहा है ये तो बिल्कुल, राइट? इट्स गोइंग गुड. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आई डोंट हैव मच होप्स फ्रॉम दिस स्टॉक. इट गोज अप इन स्पर्ट्स. आई डो नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स अ लॉट. मतलब यहाँ से देखो, मतलब 4-5 महीने तक कुछ नहीं किया, फिर फट से भाग गया, 2 महीने के अंदर अंदर उसने अब कवर कर लिया जितना कवर करना था,
और फिर यहाँ पे बीच में एक गैप अप में खुला है, देन इट्स ट्रेंडिंग साइडवेज, देयर इज नो, मतलब ब्यूटी नहीं है चार्ट में, राइट। आई मतलब अगर मेरे को मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है, आई आइडियली वांट टू सी समथिंग लाइक एंजल वन बिफोर टुडेज फॉल, राइट। सो मतलब which is consistently going up, but not like this sideways for months, then सीधा ऊपर, फिर sideways, फिर सीधा ऊपर. I don't like that. But anyway, strategy ने बोल दिया है, हम I cannot take a subjective call. Strategy has said कि HAL and Bajaj Auto को ले लो, तो हमने ले लिया है. And it's just Angel One, this one stock, because the news is so fresh, so we are doing a staggered entry for this. Okay. I had to show another thing, I think. Yeah. Anyway, so this is the current portfolio, and link would always be in the description. You can find it anytime. It is live and updated. For now, I have added the number of shares. जितने भी हैं यहाँ पे 28 shares. Based on this, I have added for Angel One. But if I buy tomorrow or day after tomorrow further units of Angel One, because I have not bought all the 28 units as of now, तो मैं यहाँ पे उस हिसाब से अपना परचेज प्राइस, बाय प्राइस भी अपडेट कर दूंगा इन द सी कॉलम. ओके, सो दैट यू कैन ऑलवेज चेक लेटर ऑल्सो. So I will buy the stock depending on how much or if it is falling tomorrow as well. So that is just one minor exception. Apart from this, as you can see, like in the weights column, right, IRFC, I told you 50% gain दे दिया इसने दिसंबर के लिए बैलेंसिंग में आके, और इसका this is the first stock actually to cross 6% weight it crossed. Of course, like it can correct any time. ये 20% अगर एक दिन में भाग रहा है तो 15% गिर भी सकता है, राइट. We do not know, we are no one to take a call on that, but basis current performance बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस है यहाँ पे. 6% का वेट क्रॉस करते हुए पहला स्टॉक है ये IRFC अपने पोर्टफोलियो में अभी. एंड सो दीज आर द 4 stocks that we entered. If you can see, everyone is technically a large cap, but जैसे मैंने बोला, BSC और Angel One are not mega caps. 30,000 करोड़ के आसपास की ही मार्केट कैप है इनकी. बट जो HAL और बजाज ऑटो है, आई थिंक दोनों 2 लाख करोड़ के ऊपर है. 2 लाख करोड़ मतलब, and still these stocks are running, and that's why I say in momentum we are not we are agnostic कि बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, कंज्यूमर कंपनी है, IT कंपनी है, ऑटो कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी, स्टोरी है नहीं है, डजंट मैटर. जो आया, जो भाग रहा है, उसको लेके भागो उसके साथ, ठीक है. जब गिरेगा तब निकल जाना. And yeah, this is the returns in inception. So 11.61% is where we are trending, 12.65% for NSE 500. You can track, you can like access this portfolio anytime. ये लिंक आई हैव शेयर्ड, एंड ये लाइव ही रहता है. एंड वट एवर चेंज, वैसे तो चेंज होता नहीं है, अगला चेंज सीधा February 15 को ही होगा. आई डोंट चेंज दिस, बट द प्राइसेस आर अपडेटेड इन रियल टाइम. सो एनी डे यू कैन गो एंड चेक कि कैसा है यहाँ का परफॉर्मेंस. ओके, एक कमेंट आया था वीडियो पे बिफोर आई लेट यू गो. देयर वाज जस्ट वन कमेंट रिगार्डिंग ड्रॉ डाउन की, टेल अस द ड्रॉ डाउन, अदरवाइज स्ट्रैटेजी. I mean, it's difficult to co-opt a strategy, right? And I agree with that. The thing is that backtesting doesn't always prove beneficial, and I haven't been able to do the backtest on this portfolio as well. I don't plan to do it also. The reason is कि मल्टीपल, दिस इज अ वेरी सिंपल मोमेंटम पोर्टफोलियो. ओके, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैंने अपनी तरफ से पैरामीटर्स इधर उधर भी नहीं किए हैं. And I'm just tracking it for like I'm tracking and investing my own money and tracking it for you guys also, so you can learn with it. This is a very common momentum strategy जिसका मतलब backtesting has like would be like proven for decades. But the more important thing is, in any momentum strategy, drawdowns can be to the tune of 40 even 50% in the like worst case scenarios. 50-60% कुछ भी हो सकता है, right? But मोटा मोटी 50% पकड़ लो. 50% is the worst that you can get in very huge crashes like GFC हो गया, global financial crisis 2008, right? At that point stocks would fall a lot, right? But not all crashes look like that. If you look at momentum
पोर्टफोलियोज इन 2018 एंड 2019 दोनों साल काफ़ी खराब थे मोमेंटम फैक्टर के लिए, बट खराब इस तरह से थे कि लाइक इफ इंडेक्स वाज गिविंग like x%, right, then momentum was giving x minus 10% or x minus 5%, whatever, but उसमें वो ड्रॉ डाउन नहीं होता. ड्रॉ डाउन क्या होता है? ड्रॉ डाउन इज इफ योर पोर्टफोलियो हैज रीच्ड x, ओके, एंड इट फॉल्स टू 0.87x, ओके, इट्स नॉट कितने पे तुमने लिया था, डोंट कंसिडर दैट. टॉप से लेके नीचे तक एक बार में तुम कितना गिर सकते हो, दैट इज द ओनली definition of drawdown. So what I am actually preparing some content and I'll be making a video by the end of January also on that, is that ki what strategies do usually momentum investors like opt for to manage drawdowns. So there is like dual momentum strategy hai, someone can take a stop loss, someone can try to answer momentum drawdowns via a very good asset allocation, right? वो सब भी होता है. सो आई एम रिसर्चिंग ऑन दैट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि ड्रॉडाउन्स को मिटिगेट करने का स्ट्रैटेजी क्या होता है, किस टाइप की स्टेप्स हो, मतलब किस टाइप की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, and what is my like what am I doing in the market, right? So I can do that. तो इस strategy का to answer that comment, इस strategy का मैं exact drawdown percentage तो नहीं बोल सकता back test करके, पर we will see how this goes. जब भी drawdown होगा हमको तो पता चलेगा ही, and I will make another video which is in general कि drawdown में हम मतलब कैसे उसको mitigate कर सकते हैं, because that is very 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 critical. Okay, and the point raised by the comment was also absolutely bang on कि we need to answer drawdowns. वो strategy हमारी पूरी set होनी चाहिए. Okay, so that is one thing. Apart from this, I don't think I had anything else. So that's it for today. I'm not sure how much long the video has become, but hopefully you didn't get bored. And if you have any comments, if you have any thoughts कि कुछ और include करना चाहिए, and sorry for this, actually I wasn't able to include a lot of content. I was traveling till yesterday and I just came, and after work I'm making this video. But if there is anything you feel was a mistake or anything, you want to further add your opinion, any like any type of content that you want in the monthly rebalancing videos as well, you can let me know.